गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, सतगुरां दी बख्शिश दे नाल गुरु दरबार दीआं हाज़रियां आपो अपना प्यार सत्कार लैके गुरु दरबार दे विच बैठे हाँ। अंमृत वेले तो गुरसिखां दी रसना तो सतगुरां दी गुरबाणी सरवण करदे हां। गुरु नानक दा पैगाम कलाम, जिस दे विच गुरु नानक महाराज ने चार पौड़ियां उचारण कीतियां ने। 4 पौड़ियां सुनिया दियां हन, 4 पौड़ियां मन्ने दियां हन, 4 पौड़ियां कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावां एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तों सदा सलामत निरंकार। ये ने 4 पौड़ियां आदेश दिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। पहलियां 4 पौड़ियां दे विच ते गुरु नानक महाराज कहंदे ने, नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दोख पाप का नास। जिहड़े रब दे भगत ने वो सदा वास्ते विगास दे विच रहिंदे ने। विगास कहंदे ने सुख अते दुख नूं हमेशा बराबर करके जानना। सुख दे विच बहुते उछलदे रहना, दुख दे विच बिल्कुल रोई जाना, ये संसारी मनुखां दे कर्म ने, रब दे भगतां दे नहीं। रब दे भगत ते सुख दे विच भी परमात्मा दे शुकराने विच रहिंदे ने, दुख दे विच भी परमात्मा दे शुकराने विच रहिंदे ने। प्रहलाद नूं जेल दे विच पाया, बड़ा टॉर्चर करदा पिता। जेल दे विच तंग कोठड़ी दे विच, हनेर वाली कोठड़ी दे विच प्रहलाद बैठा परमात्मा दे गीत गा रहा है। अत्यंत दुखी किया प्रहलाद नूं पिता ने, फिर भी रब दे गुण गाउंदा है। बंदे नूं परमात्मा ने एडे एडे महल देते ने, ये फिर भी परमात्मा दे शुकराने दे विच 2 घड़ियां चौंकड़ा ला के रब दा नाम नहीं जपदा। ते जे कोई रब दा नाम नहीं जप रहा है, सुख जिहड़ा है उहदे विच मनुख बड़ा उछलदा रहिंदा है, दुख दे विच ये मनुख इन्ना जीवन इसदा डाउन हो जाता है कि सह नहीं पाउंदा। बहुते मनुख तो ऐसे ने जिहड़े बहुते दुखां नूं ना सहारदे होए अपनी जान तक भी दे दिंदे ने। गुरु नानक महाराज जी कहंदे ने, नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। सदा विगास, सदा ही सुख ते दुख तो जिहड़ी उपरली जिंदगी है उहदे विच रहना। बहुते दुख इहनूं सता ना सकन ते बहुते सुख इहनूं उछाल ना सकन। दिन चढ़िया
ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਸੌਂ ਕੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਿੱਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਪਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਪ ਬਣੇ ਕਿ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਾਦੂ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਖੇ ਕੱਤਦੀਆਂ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸੀ,
ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਚਰਖੇ ਕੱਤਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 2 ਜਾਣੇ ਨੇ, 4 ਜਾਣੇ ਨੇ, 10 ਜਾਣੇ ਨੇ, 50 ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਦੁਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੱਥ। ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਕਾ। ਦਾਦੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਚੱਲੀ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਈਮਾਨ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀ ਸਵਾਈਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੈਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਭਾਈ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝ ਭਾਈ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਦਾਦੂ ਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਧ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਧ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸਮਾਧ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਦੂ ਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਧ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਦੂ ਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਲਾਮ ਬਦਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬੜੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਆਪਾਂ ਓਨੀ ਕੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਝੱਲ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਵਗਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਤਨਖਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਟ ਓਨੀ ਮਾਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਖੁਦ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਓਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 125 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਦੀ ਇਹ ਪਰਖ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਤੇ ਸਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੜਨ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਜਾਤਾ ਸਾਈਂ, ਝੜ ਝੜ ਪਮਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨਾ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਝੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਣੇ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾਓ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾਦੂ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਬਸ ਜੀਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਨੇ। कोई कहे राम राम, कोई अल्लाह है, कोई कुछ कह के पुकार रहा परमात्मा नूं, कोई कुछ कह के पुकार रहा। सारे दे सारे जिहड़े नाम ने ये परमात्मा दे अपने नाम ने, अपने नाम ने। इन्हां दे विच कोई भिन्न भेद नहीं है। दुनिया लड़दी है कदे किसे गल बाबत, कदे किसे गल दी बाबत, पर गुरु साहिब जी महाराज कहते सारे दे सारे धर्म एक ने। जिन्ने भी नाम सिमरन बंदगी कर रहा कोई, ए सारे दे सारे नाम जिहड़े ने वो परमात्मा दे अपने नाम ने। भाई जैत राम जी जदों गुरु साहिब जी महाराज नूं कहन लगे महाराज पंगतां लगाओ, गुरु का लंगर संगत वास्ते तैयार है ते भोजन छको। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे आ जिहड़े साडे नाल बाज ने, साडे बाज जिहड़े ने ये बड़े भुखे ने। जैत राम जी इन्हां बाजां वास्ते भी तुसीं भोजन लैके आओ। हुण जिहड़े दादू राम जी सी, जैत राम जी सी, इन्हां दे ते घर दे विच कदे मांस, कच्चा मांस नहीं आया सी। खाण की गल तो वखरी,
ਇਹ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे ने साडे बाजां नूं भोजन छकाओ ते बाज छकदे ने कच्चा मास। बाज छकदे ने कच्चा मास। गुरु साहिब जी महाराज जियां नूं उत्थे जे ते कोई आम सिख होंदा फिर ते कह दिंदा लै गुरु साहिब जी महाराज नूं पता नहीं असीं ते घर दे विच कदे मास रहिंदे नहीं, मास रहिंदे नहीं। ये तो गल आम है, समाज दे विच दो चार गल्लां आम चलदियां ने। साडे ते घर दे विच कदे मास नहीं रिझिया, ठीक है, बड़ी चंगी गल है। जीवां नूं मारना, उन्हां दा मास रन्हना कोई चंगी गल थोड़ो है, ये तो बड़ी गलत है। कोई धर्म इस गल की इजाजत नहीं दिंदा, समाजिक नियम भी इस गल की इजाजत नहीं दिंदे, राजनीतिक नियम भी इन्हां गल्लां की इजाजत नहीं दिंदे। ते तीन जगह ते बंदा रहिंदा, धर्म दे विच, समाज दे विच ते राजनीति दे विच। तिन्ने चीज़ां बंदे नूं इस गल की इजाजत नहीं दिंदियां। कल्ले धर्म की गल छड्ड दिओ, राजनीति भी इस गल की इजाजत नहीं दिंदी, समाजिक नियमां दे विच भी इस गल की इजाजत नहीं है। इस गल की इजाजत नहीं है कि तुसीं कच्चा मास किसी जानवर नूं मारो, कच्चा मास रिन्नो ते फिर उहनूं खाओ। ते जे मनुख कच्चा मास रिन्न के खा रहा है तो समझ लेना ना तो वह राजनीतिक है, ना वो समाजिक है, तो धर्म तो होना कित्थों है, धर्म तो कोल है ही नहीं। बहुतियां दियां ये गल्लां ने, पर किसी का हक खाई जाना वो भी किसी का मास खाण दे बराबर है। जिहड़ी गुरबाणी गल दी हामा भरदी है ना, बाकी गल्लां एक पासे रख के उही गल कर सकते हैं जिहड़ी गल दी गुरबाणी हामा भरदी है। हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, गुर पीर हामा तां भरे जा मुरदार ना खाए। की हो गया, बंदा कहता मैं सूअर दा मास नहीं खाता। अगर भाई जे तू सूअर दा मास नहीं खाता, किसी का हक खा रहे तो सूअर दा मास खा रहे, इस गल की हामी गुरु नानक देव साहब महाराज भरते ने, कोई बंदा नहीं भरता। की हो गया, हिंदू कहता कि मैं गऊ का मास नहीं खाता, तो जे किसी का पराया हक खा रहे हैं तो तू गऊ का मास खा रहे हैं। पराया हक खाना कच्चा मास खाण दे बराबर है। ये गल दी हामी गुरबाणी भरदी है, जिहड़ी गल ते असीं खड़दे हां। बाकी जिहड़ी दूजी गल है कि कोई अपने घर दे विच कच्चा मास लैके आया है, उहनूं रिन्न लिया, उहनूं खा लिया, तो देखण वाला कह दिंदा तूं ते बड़ा माड़ा कर्म कीता। पर गुरु नानक देव साहिब जी महाराज इत्थे रुके। की होया, की होया, तू कह रहे हैं कि मैं मांस नहीं खाता, पराया हक खा रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम मांस ते खा रहे हैं, दिन रात खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं। खैर अपना इधर नहीं जाना, गुरु साहिब जी महाराज कृपा करन। बाज ते कहते मासाहारी है। जैत राम जी हाथ जोड़ के कहन लगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ये ते मासाहारी जानवर ने महाराज, साडे ते इस द्वारे ते कदे मांस अज तक नहीं आया, आप जी कृपा कर दो। जानी जान सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे जैत राम जी ये बाज भी तो साडे नाल ही रहिंदे ने, लम्मे टाइम तो लैके साडे नाल आ रहे ने, पर असी भोजन छक लईए, साडा बाज भुखा होवे, ये भी गल सानू माफ करनी है। जैत राम जी हाथ जोड़ के कहन लगे महाराज ये जिहड़ा मसला है बड़ा बड़ा मसला तैयार हो गया, ते तुसी आप जी कृपा कर दिओ, ये सब कुछ तुहाडे चरणों दे विचों ही मिलना है, तुसी कृपा करो जिवें तुसी हुक्म करोगे। जैत राम नूं पता गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कहंदे, कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहंदे जैत राम जिथों तो लंगर तैयार किया है उत्थे तेरे कोले पदार्थ की ने जिहड़े इन्हां बाजां नूं छकाउण वाले होण। कहण लग्या महाराज
मेरे कोले होर कोई बहुते पदार्थां दे ढेर ते नहीं लगे हुए, पर हाँ मेरे कोले बाजरा जरूर पिया है, बाजरा पिया मेरे को। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे, जैत राम जी तुसी रब दे प्यारे हो, रब दे घर दे विच अज रब्बी कौतक वरतेगा। लियाओ कहंदे ये कच्चा मास नहीं है, अज तुसी इन्हां बाजां नूं तुसी बाजरा ही पा दिओ। अज ये बाज जिहड़े ने मासाहारी जानवर, अज ये बाजरा छक के ही गुजारा करनगे। जैत राम ने बाजरा पाया ते जिन्ने बाज गुरु साहिब जी महाराज दे ने, सारे बाजां ने भाई जैत राम जियां दे घर दे विच बाजरा खाधा है। मासाहारी जानवर है। इतिहास दे सुनहरी पन्नियां ते इको ही पन्ना इहो जिहा है जेड़े मासाहारी जानवर बाज भाई जैत राम दे घर दे विच जिन्हां ने बाजरा खाधा है, वरना बाज बाजरा नहीं खांदे। पर जिथे किरपा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दी होवे, उथे फिर जिथे ये सारे दे सारे इतिहासक कर्म जिथे मनुख गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे आखे लगदा है, अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे आखे लग के बाजां ने बाजरा खाधा है। पर चेते रखना, बाज एक जानवर है जिहदे बहुत गुण ने। चलो गुरु साहब ने किरपा की, आपां बाज दे गुण कदी फिर सरवण करांगे, जिस कारण करके गुरु साहब जी महाराज जी ने बाज अपने नाल रखे है। ते बाज दे विच गुण ने, उन्हां गुणां करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बाज नूं अपने नाल रखदे ने। बाज एक जानवर है जिहड़ा एक बार गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा, जैत राम साडे बाजां नूं बाजरा पा दे, अज ये बाजरा खा के गुजारा करनगे। ते उसे वक्त बाजां ने बाजरा खाधा। एक बचन पंछी नूं करदे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज, करोड़ां बचन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने सिख नूं करदे ने। ऐ सिख फिर भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे आखे नहीं लग रहा, फिर भी आखे नहीं लगता। सिखा ऐडा केड़े चंगे कर्म समझी बैठे तू, जेड़ा तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे बचन नूं नहीं मनदा। एक पंछी मन सकते ने, जद साहिब जी ने हुक्म किया तो पंछी ने मन लिया। पर तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे आखे लग के अज अमृत वेले नहीं उठ रहा। तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे आखे लग के बाणी पढ़न तो बड़ा दूर चलिया गया, बाणी सुनने तो बड़ा दूर चलिया गया। तो फिर सच देखी, नज़र मार के देखी कि एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दा बाज है, एक सिख है। तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे किन्ने क हुक्म नूं मन लिया है। बाज ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे हुक्म नूं मनदे ने। मासाहारी जानवर, मांस खाण वाले ने बाजरा खा के गुजारा कर लिया। सिखा एक मन तो तेरी ना मनी गई, ते तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज के द्वारे नूं छड्ड के किसी होर जगह ते चले गए। एक गल ना मनी, बाकी तेनों सब कुछ दिता है, एक गल नहीं मनी ते फिर तू छड्ड के चलिया गया द्वारे नूं कि द्वारा ते मेरे वास्ते ठीक नहीं है। ये बचन कह के चलिया गया, एक मन नहीं मनी तेरी। 10 वस्तु ले पाछे पावै, एक वस्त कारण विखोट गवावै। तैनों 10 वस्तुआं ऐसियां दित्तियां ने जो तो मंगिया नहीं है, तैनों दित्तियां ने, पर एक वस्तु नहीं दित्ती, विखोट गवा के बैठ गया। एक भी ना दे 10 भी हिर ले, तो मूड़ा कहाँ कहाँ करे। ऐ बंदिया, जेड़ी एक वस्तु मंग रहे हैं, जे तैनूं वो भी ना दिती, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
इस लई एक कर्म कर। गुरु अर्जन देव साहब महाराज सुखमनी साहब के अंदर ज़्यादातर मैं कथा दे विच जद भी बाणी पढ़न की गल करदा ना, जां ते जपजी साहब की वारी वारी करदा, जां सुखमनी साहिब का पाठ वारी वारी। इस वास्ते रिपीट करते रहने कि शायद कोई प्राणी लग जाए। बड़ियां सीधे सादे अर्थ पे ने दोने गुरबाणी दे विच भी, सुखमनी साहिब के अंदर भी और जपजी साहिब के अंदर भी। एक पी ना दे 10 पी हिर ले, तो मूड़ा कहो कहाँ करे। जे तेनों एक भी ना दिती, पहला वालियां भी 10 खो लईयां, की करेगा। इसे लई जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, तां को कीजै सद नमस्कारा। गुरु अर्जन देव साहब महाराज समझाते हैं, सज्जना परमेश्वर दे अगे तेरा कोई जोर नहीं चलन वाला। आ देही चलती है, बोलदा है, देखदा है, सुनदा है, सब कुछ करदा है। इक्को सैकड़ दे विच पता नहीं श्वास निकल गई तो सारा कुछ ही बंद हो जाना, की करेगा। जेड़े महलों दे विच रहना, ये महल तेरे कोल होण, कोई एक अद्धा शरीर नूं रोग लग गया, सारे दे सारे महल बेरसे हो जाने ने, की करेगा। रोटियां दे अंबार ढेर लाई जाना अपने घर दे विच लिया लिया के, शरीर नूं कोई रोग लग गया, हो सकदा तैनूं सारी जिंदगी रोटी खानी ना मिले। डॉक्टर कह देन कि रोटी तेरे वास्ते चंगी नहीं है, बंद करनी पै सकती है, क्यों अंबार लाई जाना है। एक पी ना दे 10 पी हिर ले, तो मूड़ा कहो कहाँ करे। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा। जे अज तो 50 साल नूं जाके रोग लगना ना कोई, जिहदे नाल सारा कुछ बेरसा लगन लग जाए। गुरु अर्जन देव साहब महाराज बंदे नूं अज समझाउंदे ने, सज्जना 50 साल नूं जाके रोग लगना है, सारा कुछ बेरसा हो जाना है। अज ही अपने ठाकुर परमेश्वर नूं नमस्कार करया कर, ताकि तेरे शरीर नूं कोई रोग लगे ना। अज ही नमस्कार कर। तो गुरु साहिब जी महाराज जी की सुखमनी साहिब का सुख सुख मणी, सुखां दी मणी, ये तो दुनिया ते होर ही पासे चल पई है। आ लॉकडाउन दे विच देखिया, जदों कोई प्राणी चढ़ाई कर जाता ना, घर वाले कहते ने ये चढ़ाई करे ते दूजे दिन सुखमनी साहिब का पाठ करा दे। दूजे दिन क्यों कहते, सहज पाठ ते अखंड पाठ कराउणा इकट्ठ ते करना नहीं है, ना कोई कथा कीर्तन करना इकट्ठ ते करना नहीं है। सहज पाठ भी नहीं कराउणा, फिर भोग ते इकट्ठ होवेगा। चलो सुखमनी साहिब ही करा दो। घर दे जाते ने 5-4 जाने, सुखमनी साहिब का पाठ करा के ए 2 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सारे बापू तो ਵਿਹਲਾ हो के ते आ जाते हैं। माफ़ करना, ये दुनिया मरे हुए बंदियां दे भी हड्ड रोलन लग गई है। मृत्यु शरीर ते कदे सुखमनी साहिब का पाठ पढ़िया जाता है। आद अंत तो लैके जिस दिन तो लैके गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी ने बाणी लिखी है ना, उसे दिन तो लैके मृत्यु शरीर ते अज तक सुखमनी साहिब का पाठ नहीं होया, तो हुण लोकी करवाउण लग गए। कारण की है? कारण है भी काम निबेड़ दो, खर्चा नहीं होंदा। खर्चा लाख रुपया बच रहा, बापू के भोग ते लाख रुपया लगूगा, बचा लो। क्यों लाना? मरे हुए माँ बाप नूं रोलते हैं अजकल के बच्चे। सुखमनी साहिब का पाठ करा, किसी को यह गल का ही नहीं पता भी सुखमनी साहिब गुरु अर्जन देव साहिब महाराज ने उचारण क्यों की सी। ते सारे सहज पाठ की बाणी, भोग के सलोक, रामकली सद, कथा कीर्तन, वो सब कुछ पुन दान है जिहड़ा वो कला सुखमनी साहिब दे विच ही कर देंगे। 5-4 जाने घर दे आए, सुखमनी साहिब का पाठ कराया, पाइया क देग बनाई, सस्ता जा सौदा है, 2 घंटे बाद अपने घर चले गए। भोग पै गया जी, भोग पै गया, भोग पै गया, चलो लाख रुपया बचा लिए अपने। आ जिन्हां दे खातर जिउंदा बंदा
अपना कल्ला कल्ला मास तपा के जिन्ना औलाद खातर धन कमाਉਂਦਾ है ना, ये औलाद मरे हुए बंदे दे भी हट रोल दिंदी है। ये दुनिया ने रीत रिवाज होने चलिया, जिस दिन का लॉकडाउन लगे कहते सुखमनी साहिब का पाठ करा दो, हद होई पई। गुरबाणी बारे किसी ने नॉलेज नहीं है ना कि क्यों गुरु साहिब ने उच्चारण की, कित्थे उच्चारण की, किस वास्ते उच्चारण की, कुछ भी नॉलेज नहीं है। बस इंज है कि बस सुखमनी साहिब का पाठ करा दो। खैर समाप्ति का अपना समा हो गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जियां दे इतिहासक पन्ने पहली बार 6वें पातशाह महाराज ने बाज रखे, 9वें पातशाह महाराज ने बाज रखे, दशमेश पिता नूं ते असीं कहने बाजां वाला सतगुर है। पहली बार इतिहास के सुनहरी पन्नियां दे विच बाजां ने अपना मांस खाना छड्ड के भाई जैत राम दे घर का बाजरा खा के अपना गुजारा किया है। गुरु साहिब जी महाराज का हुक्म हर एक पशु ते पंछी ते सारी सृष्टि ते सतगुरां दा हुक्म चलदा है। सो असीं भी सतगुरां दा हुक्म मन्नीए, साडा फर्ज बनदा है। भुल्लां चुक्कां दी खिमा, आईयां संगतां दा धन्नवाद। प्रेम दे नाल सारी संगत बुलायो फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।